کرنی چاہیے۔ دوسرے سے کیسے آدمی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ میرے خیال میں اس نے کوئی بات کی ہے اور وہ معذرت کرے؟ یہ عجیب یہ پیمانہ ہے۔ ایسا شوق ہے دوسرے دے خلاف گواہی ہاں دین دا اور انہوں برا پلا کہن دا کہ او دے سوا آزما ہی نہیں ٹھیک رہندا۔ بالکل بالکل، یعنی جیڑی علمی گفتگو اسی کر رہے تھے وہ ہر وقت ایس چکر چ پی جاندی ہے ہاں جی، کہ فضول اگلے گلاں۔ تے الزام کسی طریقے لاؤ، عامر نذیر نو کسی طریقے نال اسی بے عزت کر کے ٹھنڈ پائیے، ہاں حالانکہ عامر نذیر کی جرم ہے اودا؟ یعنی ہر وقت میں اونوں سننا ہے، ہاں جی، وہ بالکل مرزا صاحب دے خلاف ہے، انہوں نے سچا نہیں سمجھتا، لیکن ٹھیک ہے، کیا انہوں حق نہیں ہے اپنے خیال رکھن دا؟ لکم دینوں کو والیہ دین، اللہ تعالیٰ نے حق دیتا ہے۔ جی وہ مرزا صاحب نو سچا نہیں سمجھدا اور او دا اظہار بھی کردا تو او دا حق ہے۔ جی، بے شک۔ تے ایدے جرم کتھوں ہو گیا آ گیا کہ اسی سارے کام چھڈ کے عامر نذیر دے پیچھے پی جائیے جی انہوں تھلے ٹان واسطے؟ یعنی یہ اس کوئی وقت عقل نہیں دی؟ گفتگو وچ اوور لیپنگ شروع ہو جائے نا، ہن جی میں انہاں نال صبر سائید صاحب دے نال گفتگو کرنا چاہندا ہاں، لیکن انج ہو رہا ہے کہ او کہندے میں پہلے کرنی، میں کہنا ہاں میں پہلے کرنی، انہوں نے کہا میں پہلے کرنی۔ یہ جڑی کیفیت پیدا ہو جاندی ہے، یہ دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ کسی جگہ کچھ کمی ہے، تو میری بالکل بیوقوفی یہ مینوں سمجھا رہے تو میں اپنی بیوقوفی دی وجہ نال انہاں دے نال زبردستی کری جا رہا ہے۔ بعد وچ مینوں جی احساس ہویا تو میں اپنے تے لعنت ملامت کیتی ہے میں کتنی بیوقوف جی بالکل۔ دیکھو نا تسی کیا کہ ہاں ٹھیک ہے بھی میں چپ کر جانا تو بول رہے، جی بہت اچھی گل جی ہے، ایدا بڑا اچھا حال کڈیا تسی۔ سانی صاحب جی جی آپ نے میری نا کریکٹر اسیسینیشن کی ہے، اچھا ٹھیک ہے؟ جی اچھا جی میں نے آپ نے کہا کہ آپ کیوں حصہ بن رہے ہیں جب تک آپ نے بات سنی نہیں ہے۔ جی جی میں نے کہا کہ جی میں نے ان سے یہ بات سنی تھی جی کہ میں نے وہ جو جواب دیا ہے وہ میں ایک غیر مسلم کو یہ جواب دے رہا تھا، جی جی ٹھیک ہے؟ جی یہ بات میں ان سے سنی ہے، اس کے اوپر میں نے یہ بات کی ہے جی کہ اگر غیر مسلم بھی اس طرح کا کویشچن پوچھے جی تو اس کو کوئی اور اچھے طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے، جی ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل یہ بات میں نے ان کے منہ سے سنی ہے، یہ جی براڈ کے اوپر اپنے یہ بات کر رہے تھے۔ جی میرا جو جی بات کی تھی کہ اگر کوئی اس طرح کا کویشچن پوچھے تو اس کو یہ ایگزامپل دینے کی کیا جی ضرورت ہے؟ جی جی اور بہت آپ نے کہا ہے کہ آپ گواہ نہیں تھے، آپ وہاں میں پہ نے تو نہیں آپ کے تھے، متعلق نہیں کہا، میں نے تو آپ کا نام نہیں لیا۔ ابھی آپ نے کہا تھا نہیں نہیں بھائی۔ میں نے نہیں، کیوں جی چوہان صاحب گواہ ہو، میں انہاں نہیں، دا یہ نام لے۔ صبر سائڈ سے آپ نے کہا تھا کہ میں وہاں موجود نہیں تھا، بلکہ میں نے نہیں میں یہ نے وہ جو الفاظ سنے۔ بات کہی ہے کہ کوئی جی آدمی اگر موجود نہ ہو، کوئی آدمی ہاں، کوئی آدمی، دنیا ہاں میں وہ واقعہ، اس کے متعلق اگر سنی آپ نے کی۔ اگر سمے سٹے میں کوئی واقعہ ہو ہاں یا جلندر میں واقعہ ہو یا پٹنہ میں ہو اور بندہ وہاں موجود نہ ہو تو کیا اسے اس کا گواہ بننا چاہیے؟ ہاں، یہ جنرل بات آپ نے یہ کی جو میں نے ہے۔ بات کی ہے اس کا مطلب صبر سائڈ ہے؟ بالکل نہیں، ہو سکتے ہیں اس کا؟ نہیں۔ نہیں اب نہیں اگلی بالکل۔ بات یہ کہ انہوں نے دوبارہ ایک واقعہ سنایا، وہ واقعہ آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئی ہے جو انہوں نے بتائی ہے ابھی بات؟ مجھے نہیں سمجھ آئی، وہ بلکہ بات شروع سے یہ آپ انہوں نے نے یہ بتائی پوچھا ہے تھا۔ کہ جو انہوں نے کہا ہاں اور وہ بیان کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا اور انہوں نے اس کا جو جواب دیا ہاں اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا اور اس کا جواب یہ ہونا چاہیے، اور میں نے جب جواب دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جواب ہونا چاہیے، اور انہوں نے وہ جواب اس طرح کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ ہاں آپ سمجھ آئیے آپ کو چوہان صاحب؟ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ سانی بھائی ہاں جی، آپ لفظوں کو پرپزلی جو ہے نا موڑتے ہیں، پرپزلی۔ یہ سارا قصور سانی صاحب کا ہی میں ہے۔ آپ کو یہ بات کہہ جی رہا جی ہوں کہ 2-3 دن پہلے یہ رانا صاحب اور دوسرے لوگ آپس جی میں جی آرگیومنٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ علامہ بات پہلے مکمل سن لیں اب۔ جی جی میں سن علامہ رہا صاحب ہوں۔ اپنی کہی ہوئی جو بھی بات کہی تھی مجھے نہیں جی پتا، جی جی اس کے متعلق یہ وضاحت دے رہے تھے کہ میں غیر مسلم نے مجھے سوال پوچھا، میں نے اس کو اس کے سوال کے جواب میں یہ والی بات کہی، ٹھیک ہے؟
उसके बारे में मैंने आपको ये बात कही है कि अगर कोई गैर मुस्लिम सवाल आपसे ये वाला पूछता है, अक्सर ये गैर मुस्लिम ये सवाल पूछते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर जवाब और दिए जा सकते हैं। इस तरह की एग्जाम्पल मेरे ख्याल से, ठीक है, ज्यादा मुनासिब नहीं है। ये है मेरा सारा आर्ग्यूमेंट। आगे आप कभी कह रहे हैं आप वहां पे थे, वहां पे नहीं थे, मैं तो ये सिर्फ तो मुझे ये बताएं, जो आपको मैंने किसी आपसे बात सुनी है उससे ये नतीजा निकलता है ना, नतीजा ना निकालें, बस रहने दे नतीजा ना निकालें प्लीज सनी भाई प्लीज, नतीजा ना निकालें। जब कोई बात सुनाएंगे तो ला माला उससे मैं समझाऊं या मेरे खोते दिमाग में कुछ भी नहीं पड़ा। मैंने ये समझा है कि एक तरीक़ेकार वो है खूबसूरत जो आपका अंदाज़े गुफ्तगू है, जो आसन भी है, खूबसूरत भी है, और वो कलाम का एक हसीन इम्तजाज है, और एक वो है जिसमें बात ही नहीं करनी आती उस तरह का, जिसमें ऐसे पहलू निकलते हैं जो अच्छे नहीं हैं, वो नहीं करना चाहिए। नहीं, ये आप ओवरलैपिंग ना करें। ये नहीं ठीक। मैंने सिर्फ क्या नाम है ये कहा कि अगर कोई इस तरह का आर्गूमेंट आए तो उसको अच्छे तरीके से भी एड्रेस किया जा सकता है। हाँ, तो अच्छा तरीका सीखने के लिए सबर साइड के पास क्लासें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि और तो किसी को पता नहीं है तरीका, वो आपको पता है। आप यही कह रहे हैं। समझ लो फिर मैं तो बड़ी कोशिश की है, लेकिन मैं ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਸਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸੀਹ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਫੂਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਆ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫਾਇਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਾ ਮਫੂਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫੇਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਆਦਮੀ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ एक सेक साहब देखें, पिछले 2 वीक से और उससे भी पहले भी ये जो बात है, ये जो अहमदी इनके मुखालिफिन हो या इनके अपने मुसलमान मुखालिफिन हो, ठीक है, आप इतने मासूम ना बने कि क्या नाम है, क्या बात हुई है। नहीं, मैं तो बिल्कुल इतने क्या, मैं तो बिल्कुल मासूम है ही नहीं। मेरा मासूम ना बनाओ, मेरा मासूम होने का दावा है ही नहीं। एक मिनट सुनियो कह रहे हैं कि चौहान साहब सुनियो गल ਇਹਨਾਂ ਦੀ, मासूम होने का कोई बात कर रहा हूँ ना, कोई तो इसलिए बात ये है कि मेरा तो ये, मैं तो इस आर्गूमेंट में जाना चाहती, मैं तो ये, वो तो सनी साहब ने आर्गूमेंट लंबी की है। मैंने तो ये कहा कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन कम क्रॉस आता है तो उसको अच्छे तरीके से भी जवाब दिया जा सकता है, ठीक है। वो अच्छा तरीका वही है जो आपने इख्तियार किया, जिस तरह आप देते रहे। वो इनके पास अच्छा तरीका है, जवाब देने से पहले सबर साइड वो बंदे अच्छे तरीके से नहीं किया और एक अच्छे तरीके से दिया। अल्लाह ताला के फजल से अहमदियों के पास ही है। हाँ, वो सिर्फ अहमदी दे सकते हैं, गैर अहमदी दे सकते, ठीक है। हमारी जो है वेबसाइटों के ऊपर ये मिर्जा साहब के जवाब हम देते हैं और अल्लाह के फजल से हम ही देते हैं। ये मिर्जा साहब का इनकार कर चुके हैं, रूहानी मैदान से भागते हैं, हमारे सवालों इसलिए इल्म से इनके पास है। शर्मिंदगी नहीं मुसलमानों को होती। अभी हर वक्त शर्मिंदगी होती है, अहमदी का नाम लो ना, अहमदी का नाम लो तो सबसे पहले लोगों के ज़हन में आता है पीसफुल कम्युनिटी। पीसफुल तो कोई नहीं है, हर वक्त गालियां निकालते हैं। अभी सुनाऊं मजीद गालियां सुनाऊं, अहमदियों की गालियां। अगर सिर्फ मुसलमान कहो तो राइट वे आपके दिमाग में आता है टेररिस्ट, ठीक है। अहमदी मुसलमान का नाम लो तो राइट नहीं, अहमदी मुसलमान कहें तो राइट वे कंजर खाना ज़हन में आता है, रबवा का राइट वे आता है जिसमें हर कोई लगा हुआ है, राइट वे ये मेरे ज़हन में आता है, जहाँ मुबशर भी लगा हुआ है और मैं कोई गल कर सकना फंगा खोता सारा भी लगा हुआ करो जी। तो मैं मादत खां, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਤੁਸੀਂ बेहतरीन गल की, बल्कि मैं हसता रहा, मैं म्यूट करके ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुन के जी। लेकिन मैं आना कि एक ਹੁੰਦਾ है तहकीकी जवाब, नकली जवाब, नकलशुदा डॉक्यूमेंटरी प्रूफ, एक ਹੁੰਦਾ इल्जामी जवाब। कई लोग ने उन्होंने इल्जामी जवाब नाल बेहतर अफाका ਹੁੰਦਾ है ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤਹਿਕੀਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਐਵੇਂ ਤਹਿਕੀਕੀ ਜਵਾਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮ ਅਕਰਾਸ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਮਲਵਾਣਾ, ਉਹ ਜੀ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਵਤ ਨੇ ਜੁੰਬਸ਼ ਲਈ ਹੋਵੇ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਅਕਰਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਇਸਮਤ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਹਿਕੀਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਫਤਿਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਨੂਰੁਲ ਕੁਰਾਨ ਹਿੱਸਾ 2 ਸਫਾ 444 ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5, ਉਹ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇਖੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੌਜਾ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸਫੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਾਵੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 444 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 444 ਤੇ ਅੱਗੋਂ 3 ਸਫੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ। उम्मीद है कि सेहत नाल थोड़ी तबीयत बेहतर हो जाएगी। अब रसालों के नाम ले जाना, अब ये रसाले पढ़ना, ठीक है, उसके बाद देखना कि मिर्ज़ा साहब ने क्या जवाब दिए हैं और वो रसालों में क्या क्या उन्होंने जो है मैं तो अंदाज से देता है मिर्ज़ा साहब ने की जवाब देते ने। मैं आपको रसाले बताता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्या उन्होंने किया। और भाई उन्होंने जो कुछ किया, ओहो उन्होंने जो कुछ भी किया मैं उन्होंने ओ भाई मैंने बर्दाश्त किया। ओ सुनते लो, ओ सुनते लो सर, देखें ओ सुनते लो, बर्दाश्त कर ले। नहीं बर्दाश्त नहीं है आप। ओ हेलो आप सीधा सबर साहब सबर साहब मेरी गल तो सुनो ना, मेरी गल सुनो। कुछ नहीं होने लगा मिर्ज़ा साहब नु। मिर्ज़ा साहब इंज मेरी गल सुनो, मिर्ज़ा साहब इंज एक मुलहद दे इतराज दा जवाब दिता जिस तरह मैं जवाब दिते ने। मिर्ज़ा साहब ये जवाब दिते ना, लेकिन जवाब विच मिर्ज़ा साहब ने ईसा अलैहिस्सलाम की जात उते वो जोन सा भी अहमदी सूर के बच्चे के साथ बात करता ना, वो खुद ही स्टूपिड है। इसने परसों हजूर के फोटो के ऊपर सूर लगाया, अपनी फोटो लगाई हुई थी। इस कंजर के साथ कोई ना बात करे, सैनी साहब के साथ एंजॉय करो जिसने करना है, लेकिन इसको जो हजूर की फोटो के ऊपर अपनी फोटो लगाता है, कमीना इंसान है। ये सबर साइड को गालियां निकाल रहा है ये सबर साइड। तुमने ये क्या अमर नजीर सबर साइड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने ये क्या हरकत की है? फोटो लगाया, गालियां निकाल रहा है। फोटो क्यों लगाता है सूर के साथ? है इसको इसके साथ बात करनी चाहिए। सबर साइड तुमने कौन सी फोटो लगाई थी? सूर का बच्चा वैसे बड़ी हुसैनी साहब ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, सबर साइड ਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਆਪੀ ਆਮਰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਤਾਰਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਐਮਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਨਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਮਰਦਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। सूरां दा सूर मिर्जा मसरूर मफरूर। अच्छा मिर्जा साहब ने इल्जामी जवाब जेड़ा दिता है। एक सेकंड जेडे दोस्त आए ना नॉलेज एंड पावर सानी भाई रहने दो प्लीज। जी जी किसी ने सानी भाई एक पेज पढ़ना। और एक मिनट ठहर जा यार, सबर साइड हुसैनी साहब नु बोलन दे। चले गए वो चले गए, छोड़ो एक मिनट ठहरो, उनको बोलने दे वो क्या कह रहे हैं। हुसैनी साहब आप बोले। नॉलेज एंड पावर साहब जेडे तशरीफ ले आए ना जी जी, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਮਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੜਕਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। वो ये है कि जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीतते हैं,
इधर डूबे उधर निकले उधर डूबे उधर डूबे उधर निकले ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ हाँ तसल्ली ना लोग गाला काट लें ते ठंड पा लें क्योंकि हजरत मिर्जा मसूद साहब दे पैरोकार ने ना ऐसे ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि मसलन अगर एक नबी बशिद्दत भूखा हो राह में वो बाज़ दरख्त फलों से लदे हुए पाए तो ये तो हम तस्लीम करते हैं कि वो बगैर इजाज़त मालिक फलों की तरफ हाथ लंबा नहीं करेगा और ना दिल में उन फलों के तोड़ने के लिए अजीमत करेगा, लेकिन ये ख्याल उसको आ सकता है कि अगर ये फल मेरी मिल्क में होते तो मैं इनको खा सकता, और ये ख्याल कमाल के मुनाफी नहीं। आपको याद होगा कि आपके खुदा साहब यानी वो हजरत ईसा के मतलब कह रहे हैं यीशु मसीह थोड़ी सी भूख के अजाब पर सब्र न कर सके क्योंकि इंजीर के दरख्त की तरफ दौड़े गए। क्या आप साबित कर सकते हैं कि ये दरख्त उनका या उनके वालिद साहब की मिल्क में था? ये बस जो शख्स बेगाना दरख्त को देखकर अपने नफ्स पर गालिब ना आ सका और पेट को भेंट चढ़ाने के लिए उसकी तरफ दौड़ा गया वो खुदा तक क्या बल्कि बकौल आपके फर्द अकमल भी नहीं। तो मिर्जा साहब ने ये यहाँ पे इल्जामी जवाब दिया है। अच्छा, और फिर वो एक और पेज पढ़ना प्लीज एक मिनट ठहरे जरा, मैं ये तो सारा पढ़ो सारा पढ़ के हाँ जी। अलगरज किसी के दिल में यार सबर साइड सबर कर ले मसीह मौत की अगर पढ़ा जा रहा है वो तो बर्दाश्त करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप वो पढ़ेंगे मसीह तो मौत का आपको पता कलाम चल है, जाएगी सुनो ना। चुप करके। अलगरज किसी के दिल में ये ख्याल गुजरना कि ये चीज़ खूबसूरत है, ये एक अलहदा अमर है जिसको खुदा ने आंखें दी हैं। जैसे वो कांटे और फूल में फ़र्क कर सकता है, ऐसा ही वो खूबसूरत और बदसूरत में फ़र्क कर सकता है। आपके खुदा साहब को शायद ये कुव्वत मुमय्यज़ा फितरत से नहीं मिली होगी, मगर पेट की शहवत के लिए तो इंजीर के दरख्त की तरफ दौड़े, ये भी ना सोचा कि ये किसका इंजीर है। ताज्जुब है कि एक शराबी और खाओ पियो को शहवत परस्त ना कहा जाए, और वो पाक ज़ात जिसकी ज़िंदगी है, जिसका हर एक फ़ेल खुदा के लिए था, उसका नाम इस ज़माना के पलीत तबाह शहवत परस्त रखें। अजीब तरीक़ी का ज़माना है। इस्लाम की आला तलीम का ये नमूना है कि कस्तन किसी और की तरफ नज़र उठाकर ना देखो, ये बद नज़री का पेशकेमा है। और अगर इत्फाकन किसी खूबसूरत औरत पर नज़र पड़े, खूबसूरत मालूम हो, तो अपनी औरत से सोबत करके उसको ख्याल को टाल दो। खूब याद रखो कि ये तालीम हैज़ा और इससे बचने के लिए हिफ्ज़ मातकद्दन के तौर पर कोई भी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यीशु के मुतल्लिक ये है कि एक ज़ानिया औरत को ये मौका देता कि वो ऐन जवानी और हुस्न की हालत में नंगे सर उससे मिलकर बैठती और नहायत नाज और नखरा से उसके पाँव पर अपने बाल मलती और हराम कारी के इतर से उसके सर पर मालिश करती। अगर यीशु का दिल बद ख्यालत से पाक होता तो वो एक कस्बी औरत को नज़दीक आने से ज़रूर मना करता, मगर ऐसे लोग जिनको हरामकार औरतों के छूने से मज़ा आता है, वो ऐसे नफसानी मौका पर किसी नासी की नसीहत भी नहीं सुना करते। देखो, यीशु को एक गैरतमंद बुजुर्ग ने नसीहत के इरादा से रोकना चाहा कि ऐसी हरकत करना मुनासिब नहीं, मगर यीशु ने उसके चेहरा की तुश रूही से समझ लिया कि मेरी इस हरकत से ये शख्स बेजार है, तो रिंदों की तरह एतराज़ को बातों में टाल दिया और दावा किया कि ये कंजरी बड़ी इखलासमंद है, ऐसा इखलास तो तुझ में भी नहीं पाया। सुभान अल्लाह, ये क्या उम्दा जवाब है कि यीशु साहब एक जनाकार औरत की तारीफ कर रहे हैं कि बड़ी नेक वक्त है। दावा खुदाई का और काम ऐसे वाला जो शख्स हर वक्त शराब से मस्त रहता है, सरमस्त रहता है और कंजरियों से मेल जोल रखता है और खाने पीने में ऐसा अव्वल नंबर का कि जो लोगों में उसका नाम ही खाओ पियो पड़ गया है। हसानी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये अगे काफी पड़ गया कि ये खाओ पियो है। नदीर साहब ਇਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ हसानी साहब मिर्जा साहब का कलाम पे सुन दे हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की मैं पढ़ रहा हूँ। मिर्जा साहब ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲੇ ਆ नहीं मैं सुना रहे हैं, मैं मिर्जा साहब ਨੂੰ मानना है, उन्हें ते ईमान रखना है और जो भी उन्होंने लिखा बिल्कुल दुरुस्त लिखा। आप सुनाए इल्जामी जवाब है ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਾਈਦਾ ਤੇ ਕੀ ਪੜੀਦਾ। ਫਾਲ ਸਾਹਿਬ और चल तू सुना दे मरजाई।
चलो मैं पढ़ लें सुनाता हूँ अब इकबाल अच्छा मैंने पढ़ लेने दो, थोड़ा जा रह गया। पढ़ो 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 पढ़ना की पढ़न जोगा है सही है तू पढ़न दो पढ़न दो। अच्छा, ये जो जवान औरतों के छूने से परहेज नहीं करता, एक कंजरी खूबसूरत ऐसी करीब बैठी है कि गोया बगल में है, कभी हाथ लंबा करके सर पर इतर मल रही है, कभी पैरों को पकड़ती है और कभी अपने खुशनुमा और स्याह बालों को पैरों पर रख देती है और गोद में तमाशा कर रही है। ये बंदा मुल्ले तो यसू साहब इस हालत में वजद में बैठे हैं और कोई एतराज करने लगे तो उसको झिड़क देते हैं। और तुरफा ये कि उम्र जवान और शराब पीने की आदत और फिर मुजर्रद और एक खूबसूरत कस्बी औरत सामने पड़ी है, जिस्म के साथ जिस्म लगा रही है। क्या ये नेक आदमियों का काम है? इस पर क्या दलील है कि उस कस्बी के छूने से यसू की शहवत ने जुम्बश नहीं की थी? अफसोस कि यसू को यह भी मुयसर नहीं था कि उस फासिका पर नजर डालने के बाद बटालवी ने अपनी भी किसी लिखा है, बीवी उमर से शरीफ ने भी सोबत लिखा कर है। लेता। अगर ना दिखाया ना, कमबख्त ये तो जानिया बकवास के कर रहे हो, तो फिर कमबख्त कहना। जानिया के छूने से और नाजो अदा करने से क्या कुछ नफसानी जज्बात पैदा हुए होंगे और शहवत के जोश ने पूरे तौर पर काम किया होगा। इस वजह से यसू के मुंह से ये भी ना निकला कि ए हरामकार औरत मुझसे दूर रह। और ये बात इंजील से साबित होती है कि वो औरत तवाइफ में से थी और जनाकारी में सारे शहर में मशहूर थी। ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹਾਵਤ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ अठवाल साहब बगैरता ना करो अठवाल साहब ना गुस्सा ना करेगा। यानी हजरत मसीह मौद कलाम ते गालियां कट रहे हैं। क्या ये मिर्जाइयत है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। ਉਹ ਸ਼ਹਾਵਤ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ अठवाल साहब बगैरता ना करो अठवाल साहब ना गुस्सा ना करेगा। यानी हजरत मसीह मौद कलाम ते गालियां कट रहे हैं। क्या ये मिर्जाइयत है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सनी भाई ये जो बगैर वजह के सैको सुबह के हट के ये सारा एक प्लान के तहत पढ़ा जाता है, ठीक है, हाँ। इसका पढ़ने का अब मैं आपको ये करूंगा आप अलबरिया शाकुस बाग से पढ़ने लगे हैं कुछ वो पढ़े? नहीं आप किताब खोलें जरा, किताबुल बरिया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप शाकुस बाग से नहीं, किताबुल पढ़ें जरा बरिया ना। खुलवाने लगे हैं तो हाँ, कौन सी खोलें जिल्द जरा। नंबर क्या है? जिल्द नंबर है 11 या 12 है। 11 या 12 है? हाँ, किताबुल बरिया। और सारा पढ़ना कि उनके रसाले उनको जो कुछ था सारा पढ़ना, ये इल्ज़ामात क्यों जवाब उनको क्यों दिया गया था, क्योंकि यसू और हज़रत सारी किताब पढ़नी है किताबुल बरिया? वो तो केस है डॉक्टर मार्टिन क्लार्क का, सारा पढ़ना है। करना नहीं किताबुल बरिया ना 11 है ना 12 है बल्कि वो 13 है। आप सब बताएं क्या है? हाँ 120 100 ये 140 है या 20 है? 140 या 140 मेरे यहाँ से सामने शुरू है। करना कि हमारे नबी हमारे सैयदना मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देते थे। सबसे गालियाँ देने वाले पादरी इमामुद्दीन नहीं मुझे आपने कहा है किताब मेरे हाथ वो में अपनी है। किताबों में तहकीक उल ईमान वगैरह में खुली वसल्लम को गालियाँ देते थे और दगाबाज पराई औरतों को लेने वाला वगैरह वगैरह करते थे। नहाया सख्त तो पता है हमें गालियां देते थे यार, हमें पता है, हम कब इनकार आपको किसी ने बताते किया हैं है? ना, आपको बताते हैं ना कि क्यों मिर्जा साहब ने ये जो मतलब वो गालियां आप दोहराना चाहते हैं आप? नहीं बात तो फिर हमें पता है, हम जब मान रहे हैं कि गालियां देते थे। ये 71 लोगों को पता चलना चाहिए कि मिर्जा साहब ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं, उनके यस्सों की जो है बात बताई है, ठीक है। उनको बताया है कि जो हमारे नबी मासूम नबी के बारे में आप ये बातें करते हो,
ہمارے نبی میں ایسی چیزیں بالکل نہیں تھی, ٹھیک ہے. اس کا جواب انہوں نے جو دیا ہے اس کا جواب وہ انہوں نے تحقیقی ان کی کتابوں سے دیا ہے, اپنی طرف سے انہوں نے ایک ورڈ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا کہ شاید نے جنبش تو لی ہوگی, یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے رزلٹ نکال کے بتایا. جب رزلٹ یہ رزلٹ نکلتا ہے, کرتے ہیں آپ, جب کمپیریٹو اسٹڈی آپ کرتے ہیں نا, تو پھر آپ یہ بتاتے عیسیٰ ہیں علیہ آپ السلام کے بارے میں رزلٹ آپ نکال سکتے ہیں. دیکھیں عمر صاحب, یہ ثانی صاحب کو پڑھنے دینا, تو پھر دیکھنا کہ رزلٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. او بھائی, میں نے جب خود مان لیا کہ وہ گالیاں دیتے تھے, جب میں انکار ہی نہیں کر رہا. کہا ہے کہ ہم نے 40 سال تک ان وہ 40 سال یار 140 مان لیتا ہوں, میں 140 مان لیتا ہوں. انہوں نے گالیاں دی, مان لیجئے, میں کب انکار کر رہا ہوں گالیاں. اچھا, محمد حسین بٹالوی صاحب نے لکھا ہے اس کے بارے میں کچھ؟ نہیں, یہ لفظ جو بھی بندہ لکھے گا نا, لکھا ہے نا, نہیں اس طرح کا کوئی بھی لفظ انہوں نے نہیں لکھا. آپ تلک جائیں گے. دکھاؤ کہاں لکھا تھا, کہاں لکھا ہے, دکھاؤ نا. جو آپ کے جو ابھی فاحشہ عورت کے بالوں کو, جو بھی آپ کے کرنٹ مفتی ہیں, کیا نام ہے ان کا, جن یہ گجرانوالے والے ہیں, تو آپ کے بھائی دی ہیں, تو وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو دی ہیں کہ یا یسوع کو دی ہیں؟ اگر کسی بھی بندے نے یسوع المسیح کو گالیاں دی ہیں تو وہ میری نظر میں اتنا ہی بڑا مجرم ہے. پڑھنے دیں ذرا, کسی بھی سینس میں گالیاں دینے کی. عامر بھائی پڑھ لینے دینا ذرا نا, کیونکہ اتنی یار میں نہیں سننا چاہتا نا. میں نبی پاک کو, اگر انہوں نے گالیاں دی, میں مان جب رہا ہوں, تو آپ نے مجھے ضرور سنانی ہے کہ انہوں نے یہ گالیاں دی تھی. اگر کسی بندے نے نبی پاک کو گالیاں, سن تو لیں, اگر کسی بندے نے نبی پاک کو گالیاں دی ہیں, یہ علمی باتیں آنتی ہے کہ ایک بندے کا آپ سارا کچھ دکھا دیں, اس بندے نے اسلام کو ڈیفینڈ کیا ہے, آپ اس کے اوپر اب جب پہلے سارے آپ کے جو بڑے علماء تھے وہ کہتے تھے جواب کو نہیں دے ہمارے طرف دینے والا, جب جواب دیے گئے تو اس کے بعد پھر آپ لوگ انہی کے مخالف ہو گئے. او بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف جواب دینے میں فرق ہے. میں نے صرف اتنا کہا کہ جو جواب مرزا صاحب نے دیے, اگر میں ہوتا تو میں اس طرح نہ دیتا, میں تحقیقی جواب دیتا. میں نے تو اتنی بات کہی ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے آپ کے مفتی صاحب نے گالیاں نکالی, وہاں ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. یہ آپ ایسے نہ بات کریں. یہ صبر سائڈ, میری بات سنو ذرا. تم لوگ مسیح موت کی باتوں کو, تمہیں اس سے شرمندگی کیوں ہوتی ہے؟ مجھے ہمیں شرمندگی نہیں ہے, پہلے بات سن. کیوں شرمندگی؟ تم کہہ رہے ہو نا یہ اس لیے انہوں نے لکھا, فلاں کے لیے لکھا, بھی انہوں نے لکھا ہے, ظاہر ہے لکھا ہے تو کسی وجہ سے لکھا ہے نا. بات سن لے پہلے, جب تک وہ وجہ نہیں پڑھیں گے نیچے لوگوں کو, تو ہمیں وجہ پتا ہے, ہمیں وجہ پتا ہے. نور القرآن ساری پڑھو, اس میں وجہ نظر آ جائے گی. وجہ جب اعتراض کیا گیا تھا, انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. ہاں, تو ہمیں سب کو پتا ہے, کیونکہ فتح مسیح نے اعتراض کیا تھا, اس کے اعتراض کے جواب میں انہوں نے یہ لکھا. ہم تو کہتے ہیں کہ انہوں نے صحیح لکھا, جو سمجھتا ہے کہ انہوں نے غلط لکھا اس کی مرضی, وہ سمجھتا رہے. ہمیں تو کوئی شرمندگی نہیں ہے, ہم تو اس کو بار بار پڑھ کے سنائیں گے. تم مرزائیوں کو کیوں شرمندگی ہوتی ہے اس سے؟ ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی جب تک. تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ابھی تم نے اعتراض کیا ہے, ایسی آپ نے irrelevant. بھئی ہم نے ریلیونس اس کی یہ ہے کہ صبر سائڈ سنو چپ کر کے, یہ ریلیونس اس کی یہ ہے کہ تم نے اعتراض کیا تھا کہ الزامی جواب دیا عامر نذیر صاحب نے, تو انہوں نے کہا کہ بھی مرزا صاحب نے بھی دیا ہے. اس کی ہم نے اگزامپل آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ مرزا صاحب نے الزامی جواب دیے ہیں. نہیں, انہوں نے الزامی, ظاہر اس کی وجہ تھی نا, الزامی جواب دینے کی وجہ تھی, تو انہوں نے جو جواب دیے وہ بالکل درست نہیں ہے. غلط بات نہ کریں, انہوں نے کیا غلط بات نہ کریں؟ ایک عالم سے کویشچن پوچھا, تم کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ طریق درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ الزامی جواب دینا درست نہیں ہے. اگر یہ درست نہیں ہے تو مرزا صاحب نے تو ساری الزامی جواب دیے, سکھوں کو بھی دیے, ہندوؤں کو بھی دیے, مسلمانوں کو بھی دیے, عیسائیوں کو بھی دیے الزامی جواب. انہوں نے ایک عالم سے ایک سوال پوچھا, ٹھیک ہے, اس کا سوال کا جواب انہوں نے جو دیا, چلو ٹھیک ہے. ہاں, تو جو سوال کرے گا, اعتراض کرے گا, اس کو الزامی جواب دے سکتے ہیں نا. حضرت مسیح علیہ السلام نے دیے الزامی جواب. کہ میں نے 40 سال تک ان کو برداشت کیا, ٹھیک ہے. وہ بھی کون کہہ رہے نہیں کیا, کسی نے کہا نہیں کیا. عجیب آدمی ہے تم ایسی بات کر رہے ہو جو سب کو پتا ہے, تو تم کہہ رہے ہو انہوں نے ایسے. بھئی ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ اعتراض کے جواب میں انہوں نے یہ باتیں. بھائی صاحب نیچے لوگ لکھ رہے ہیں توبہ استغفار, اور لوگوں لکھ رہے ہیں, تو ہم ان کو زبردستی ہم نے منوانا ہے. جو لوگ مرزا صاحب کو سچا نہیں مانتے وہ جو مرضی لکھیں.
और जब तक आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि ये क्या रीजन थी, अभी देखें ना लामा साहब ने क्या कहा है कि वो ना पढ़े क्यों कहा है? उसकी वजह है वो, उनको पता है कि जब ये पढ़ेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि मिर्जा साहब ने वो थे असल मुजाहिद इस्लाम के, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि ना पढ़े, हमने नहीं सुनना। अच्छा, जिस तरह से वो शर्मनाक गालियां उन्होंने हमारे महबूब नबी को दी तो हम वो सुनना नहीं चाहते, आपका क्या ख्याल है कि ये भी इस तरह की शर्मनाक तहरीर थी जो पढ़ी है चौहान साहब ने? जब मिर्जा साहब ने उनको जवाब दिया, ठीक है, हाँ। तो फिर उस वक्त आप बड़े खुश थे जब उन्होंने क्या नाम है, आप जो है ना क्या नाम है पढ़ने लगे हैं, आपका मतलब पता लग गया होता है मिर्जा साहब को डिफेम करना नो मैटर। वो मिर्जा साहब की तहरीर नहीं है जो आप पढ़ना चाहते, वो तो उन्होंने एग्जाम्पल लिखी है कि लोगों की है, वो मिर्जा साहब की तहरीर तो नहीं है अंकल। जब वो उन्होंने एग्जाम्पल लिखी है कि जो पढ़ना चाहते हैं वहां जाके पढ़ ले, लेकिन गालियां हमने सुनानी तो नहीं है ना यहाँ पे। नहीं सुनानी है तो नहीं, मगर ये जो बातें आपने की वो मिर्जा साहब की तहरीर नहीं है, मिर्जा साहब ने किसी और की लिखी हुई है, लोगों ने लिखा। ये क्यों नहीं बताते? मैं इनको समझाता हूं। सबर साहब, अगर आपके वालिद साहब को किसी ने गालियां दी हो मिसाल के तौर पर और वो रिकॉर्ड हो जाए, क्या आप बार बार लोगों को सुनाओगे कि देखो मेरे बाप को ऐसी गाली दी, मेरी माँ को ऐसी गाली दी? दोहराएंगे उनको? ये जो अभी देखो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता, मगर ये जो तारक साहब ने पढ़ा है, ठीक है, अब लोगों हाँ, तो मान लिया ना मैंने कि वो गालियों के जवाब में, मैं तो मान रहा हूँ कि उन्होंने गालियां दी थी। मेरी बात सुन ले, अगर ये इबारत पढ़नी है तो वो भी इबारत पढ़नी पड़ेगी कि क्यों कदम उठाया। भाई वो इबारत तब पढ़ो अगर कोई कहे कि उनको तो किसी ने गालियां नहीं दी, फिर हम लेकिन अगर कोई कहे कि हाँ जी हमें पता है गालियां लोगों ने दी, तो फिर हमें गालियां दोहराने की क्या जरूरत है? इंसाफ से काम ले। अभी किसी ने कहा था कि ये बात पढ़ी जाए, ये जरूरी है बात पढ़नी। मैंने सिर्फ आपको मिसाल दी थी कि अगर आप पढ़ेंगे ना तो जिस तरह नबी पाक के दिफा में ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात पर मिर्जा साहब ने लिखी हैं बातें, वो अगर मैं होता तो मैं ना लिखता। इतनी बात मैंने चौहान साहब ने पढ़ के कहा है कि इसमें कौन सी गलत बात है, अमर साहब, लेकिन आपको पता लग गया क्यों गलत बात है। नहीं मैंने समझते नहीं गलत लिखा है मिर्जा साहब, इस वजह से रोते हैं। पूछा था चौहान साहब ने तो फख्र से पढ़ा, उनको तो गलत नहीं लगा, आपको गलत लगी है ये मिर्जा साहब का जवाब गलत? मुझे बिल्कुल नहीं गलत लगी। तो फिर आप परेशान क्यों हैं? रोला कादा है भाई? परेशान इसलिए हूँ कि लोग गलत नहीं है तो फिर ठीक है, गलत नहीं है तो पढ़ के सुना दिया हमने। आपने पढ़ा हुआ है, ये जो 70-72 लोग बेचारे सादा लोग बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं है। सादे इतने टिकटॉक दे सादे ही सारे बैठे हैं, रोटी ने चोची कहते हैं, उनको तो पता ही नहीं है ये बात क्यों लिखी जाती है। इनको मैं जो बता रहा हूँ कि उन्होंने नबी पाक को गालियां दी हिंदुस्तान में, पंडितों ने, पादरियों ने, हाँ जी, सिखों ने, हिंदुओं ने दी, मान लिया मैंने। जब मैं जो कह रहा हूँ तो ये सुन नहीं रहे नीचे 70-75 लोग? गालियां कौन कहता है? दोहरा के सुनाओ हमें वो गालियां, जो कहता है उसको बुलाओ ऊपर। और जो ये नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हाँ मिर्जा साहब ने इतराज के जवाब में इल्जामी जवाब दिया, वो आपको पढ़ के सुनाया, तो इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? हम मान भी रहे हैं कि हाँ लोग बदजुबानी करते थे, उसके जवाब में उन्होंने ये लिखा। तो नहीं जी हमने गालियां भी सुनी, वो गालियां मिर्जा साहब की तहरीर नहीं है, मिर्जा साहब ने उसको एग्जाम्पल दिया कि लोगों ने इस तरह की गालियां दी, तो हमने गालियां तो नहीं ना दोहरानी यहाँ पे। इनको गुस्सा लग गया ये तहरीर सुन के, इसलिए कि तहरीर में मिर्जा साहब ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि सबर साइद साहब जो है ना कंट्रोल ये उनको ऑन नहीं करना चाहते मिर्जा साहब के अल्फाज को। मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं लगा जब तक आप उनकी वो वाली तहरीर जो आपने कहा नहीं पढ़नी, तो अगर वो नहीं पढ़नी तो ये भी नहीं पढ़नी। क्यों? इसका मतलब ये तो मिर्जा साहब की तहरीर है, वो गालियां किसी बदबख्त ने दी हैं, वो गालियां हम क्यों पढ़े? वो मिर्जा साहब ने सिर्फ एग्जाम्पल दी है। उनके कहने का मतलब ये है, उनके कहने का मतलब ये है कि जिस तरह वो गालियां इसी तरह ये भी गालियां हैं। नो 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 अमर साहब, अच्छा ये भी गालियां हैं? हाँ, इसलिए तो कहते हैं बराबर करो ना, वो कहते हैं दोनों गालियां बराबर करो। कहते हैं ये गालियां सुनाई है तो वो उनकी गालियां भी सुनाई। हाँ ये कह रहे हैं। ये अमर साहब आप गलत दलील। प्रोपेगेंडा तो फिर क्यों आप वो दोहराना चाहते हैं? सबर साइड हमें यार बता तो देना, आप क्यों वो सुनाना चाहते हैं वो गालियां? अच्छा मैं सुनाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो तारक साहब ने ये पढ़ा है, ठीक है, अब लोग बेचारे मासूम है, ठीक है, 70-72 लोग सुन रहे हैं। वो यार कौन सा मासूम है? मासूमा से जड़ा आ गया, जड़ा ताजा पैदा हुआ है किसी चीज का। मैं उनको बता रहा हूँ मासूमों को कि नबी पाक को उन्होंने गालियां दी हुई हैं, वो वहां पर मिर्जा साहब ने कोड की हुई हैं,
اور सफर साइड साहब वो सुनाना चाहते हैं और किताबुल ये बरिया सारी जो तारक चौहान साहब ने पढ़ा है ये सारा उनकी बाइबल से इंजीलों से मिर्जा साहब ने उनको हाँ, दिखाया है। बाइबल अभी से तक इंजील कुछ में तो भाई लिखा हुआ आपकी है। बात सुन ली हमने, आपने कह दिया कि जी नहीं ये बाइबल से है। भाई हमने तो जो भी उन्होंने लिखा हम कहते हैं उन्होंने सही लिखा है, हमें तो कोई शर्मिंदगी नहीं। मैं तो जितनी दफा मुझे कहेंगे मैं इसको पढ़ूंगा, मुझे तो कोई शर्मिंदगी नहीं। ये लिखी है उन्होंने बातें, हमने छुपाना है इनको। जी किसी को नहीं पसंद तो उसकी मर्जी है, वो नाम को पसंद ये करे। जब भी ये पढ़ें लोगों को बताएं कि ये उनकी बाइबल से उन्होंने ये कोट की हैं। हाँ इनको इल्जामी हाँ, जवाब बाइबल में है, लिखा बता तो हुआ है रहे ना, हैं शायद उन्होंने इसलिए- इल्जामी जवाब दिया इनको। बाकी ये उन्होंने हाशिया राय की है, ये बातें तो लिखी नहीं हुई, लेकिन ये उन्होंने एक तरह का उसको एलेबोरेट किया है उन बातों को। ये सारी बातें तो नहीं लिखी मिर्जा हुई, साहब ने कुछ ये जो conclusion भी तरीके से निकाला उन्होंने है। बयान किए। हाँ कुछ हाँ कंक्लूजन नतीजा भी निकाला है उन्होंने, बिल्कुल। और ये देखे ना कि यीशु को ये भी मुयस्सर नहीं था कि उस फासिका पर नजर डालने के बाद अपनी किसी बीवी से सोबत कर लेता। अभी ये इंजील में तो नहीं लिखा हुआ। कमबख्त जानिया के छोटे छूने से और नाज़ोदा करने से क्या कुछ नफसानी जज्बात पैदा हुए होंगे, ये इंजील में नहीं लिखा हुआ। और शहवत के जोश ने पूरे तौर पर काम किया होगा, इसी वजह से यीशु के मुंह से ये भी ना निकला ए हरामकार औरत मुझसे दूर रह। ये कहीं लिखा हुआ है ये? आमिर नज़ीर साहब ये जो आप कह रहे हैं ये कि उन्होंने अपनी तरफ से एक कंक्लूजन निकाला है कि मिर्जा साहब ने कोई कंक्लूजन निकाला है। मिर्जा साहब से पहले किसी ने ये कंक्लूजन निकाला हुआ है या नहीं आमिर नज़ीर साहब? भाई हमारी ये डिस्कशन ही ये नहीं वाला है। जो- हमने तो ये कहा ये था वाला जो एक मिनट है, इल्जामी मुझे बात जवाब करने देना। दे सकते हैं अभी जब मैं कोई बताता हूँ ये इल्जाम शहवत हो। वाला कहाँ से आया बताएं। आमिर नज़ीर साहब किसी और ने निकाला है ये शहवत वाला या मिर्जा साहब का अपना जाती फिर वही ख्याल है? बात किसी और ने निकाला है, हमें किसी से क्या, हम तो मसीह मौत को मानते साहब, हैं, आपने हम कितनी उनकी बात करेंगे। नहीं, तो बात करने दें। मसीह मऊद ने ठहर जाए ना, अब किसी और को भी बात कर लेने देना। या तो कह दें कि यहाँ पे किसी और को इजाजत नहीं है, बस हमें किसी से कोई गरज और नहीं। नहीं भाई आप जो यहाँ सवाल पूछ रहे हैं ना वो हज़रत रेलेवेंट मसीह नहीं मऊद है, से पहले किसी मसीह मऊद से पहले कि किसी और ने निकाला, बात ये तो कर लेने रेलेवेंट देना। नहीं है। हम तो बात कर- मसीह मौत की बात कर कर लेने रहे देना, हम हैं बात कि कर लेने दें, वो क्योंकि- इल्जामी जवाब देते थे और हम उनको ऑन ठीक करते है ना, हैं। अच्छा वो किया। बिल्कुल मैं सही नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने लिखा। मुझे अब बात कर लेने दें, मेहरबानी करें, इजाजत दे दें मुझे। आप ये बता रहे हैं कि जी मुसलमान यहाँ पे आके ये साबित करते हैं कि हजरत मसीह मऊद ने कहा, ठीक है कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं कहा। इल्जामी जवाब में कहा अगर हम होते मुसलमान सच्चे हम ये लफ्ज कभी भी इस्तेमाल ना करते, इल्जामी जवाब में भी ना करते। मैं मौलाना साहब को, अलामा साहब को बताना चाह रहा हूँ कि मिर्जा साहब से पहले एक शख्स ऐसा गुजरा है, शायद मौलाना साहब को पता भी होगा, अलामा साहब को, लेकिन वो बताना नहीं चाहते। मौलाना रहमतुल्लाह साहब किरानवी, जिनकी जो तारीख पैदाइश है वो 1818 और 1891 उनकी मक्का मुकरमा में उनकी वफात है। ये देवबंदी अहले हदीस मसलक के आलम थे और ब्राइन अहमदिया में हिस्सा अव्वल में हजरत साहब ने इनका जिक्र किया है कि ये भी यही काम करते थे ईसाइयों के साथ और यहूदियों के साथ, और इस बारे में ये बड़े मशहूर थे कि उनके साथ ये करते थे। इनके अल्फाज सुने। मैं आमिर नज़ीर साहब को 2 दिन पहले भी ब्राड पे कह रहा था कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपकी भाई इसको डिनाई कौन कर रहा है? रहमतुल्लाह किरानवी साहब को मैंने खुद पढ़ा है, उनको मैंने पेश भी उन्होंने किया क्या था। लिखा हुआ है उठाते हैं, मुझे हम बता लेने हाँ दें ना। उन्होंने मुझे जो बता- भी आपने लिखा पढ़ा है हम उसको डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने डिनाई नहीं नहीं ये कर रहे। लिखा। आमिर नज़ीर साहब ये कहते हैं दुनिया को मिर्जा ये साहब ने उनकी तरफ देखकर लिखा है, मिर्जा साहब ने उनसे सरका करके लिखा है। बिल्कुल आप देखें तो सही कि उनको वो कब- बोल रहे- मिर्जा साहब ने यीशु मिर्जा के साहब लफ्ज़ चोरी छोड़ करते दिए। थे सलाम। बात सुने आमिर नज़ीर साहब, आमिर नज़ीर साहब बात सुने। मिर्जा मसीह साहब मौत ने- कलाम चोरी करके मिर्जा लिखते थे। आमिर नज़ीर साहब, ये बात है। आमिर नज़ीर साहब आपको पता चलता है ना, ठहर जाइए जरा। अच्छा बोल लेने देना, बाद में मेरा ठट्ठा उड़ाते रहे आप। शेख बाद साहब में- गलत पूरी करन दियो बाद में मेरा ठट्ठा उड़ाते रहे, बाद में मजाक करते रहे, बाद में जो मर्जी करते रहे। आप कह के लगाने से कुछ नहीं होता। आप लफ्ज देखें कि मौलाना साहब ने क्या इस्तेमाल किए हैं, वो देखें कि उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा है, हजरत ईसा के बारे में क्या कहा है, वो सब अब सुने। आपकी ब्राड पे अगर मैं सुनाता, आप लोगों ने नीचे उतार के फेंक देना और कहना था ये शातमियत कर रहा है कि ये हमारे मौलवी ने है, लेकिन हमने कहना ये कर रहा है। वो अब उस किताब के, उनकी किताब है इज़ारुल हक, उसके सफ़ा 558 के ऊपर वो कह रहे हैं कि जी पीछे कोई हवाले दिए हैं बाइबल के, उसके बाद कहते हैं इस फसल के शुरू में आपको मालूम हो चुका है कि नूह अलैहिस्सलाम ने शराब पी और इनके होश और हवास जाते रहे और इसी हालत में बरहना हो गए, और लूत अलैहिस्सलाम ने शराब पी, वो भी होश और हवास खो बैठे और इसी हालत में अपने दोनों बेटियों के साथ वो शर्मनाक हरकत की
جو کبھی کسی شرابی اور کمینے انسان نے بھی نہ کی ہوگی. ذرا لفظ سنیے گا آپ کہ کس قسم کے ہو رہے ہیں. حضرت مسیح موعود یسوع کہہ رہے ہیں, یہ یہاں پہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں, یوحنا کے باب 13 کی آیت نمبر 4 کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ یسوع مسیح دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر پر باندھا, اور اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور جو کمر میں باندھا اور اس سے پوچھنے لگ گئے. اب اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات شبہ میں ڈالتی ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یسوع نہیں, جو مرزا صاحب یسوع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, یہ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ یہ بات شبہ میں ڈالتی ہے کہ اس وقت عیسیٰ السلام عیسیٰ اسلام پہ شراب میں اپنا پورا تسلط کیا ہوا تھا, یہاں تک کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کرنا چاہیے, کیونکہ پاؤں دھونے کے لیے بھلا کپڑے اتارنے کی کیا ضرورت تھی. یعنی بالکل الف ننگے ہو گئے وہ, یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ. پھر اس کے بعد کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے وہ حکم و عدل تو نہیں ہے نا, حضرت سن لینا, حکم و عدل تو مرزا صاحب نے, ان کو سنا لینے دینا یہ کون کون سے نبی ادھر آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے شراب کی ندامت میں اپنی کتاب امثال میں فرمایا کہ جب میں لال لال ہو, جب اس کا عکس جام پر پڑے, جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر, کیونکہ وہ انجام کار سانپ کی طرح کاٹتی ہے اور رافی کی طرح ڈس جاتی ہے. اب وہ بات آ رہی ہے جو آپ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ کے بارے میں, اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی اسی طرح نوجوان اجنبی لڑکیوں کا نوجوان مردوں کے ساتھ اخلاط تو بہت ہی خطرناک اور آفت ہے, اور اسی حالت میں پاک دامنی کی توقع بہت مشکل ہے. بالخصوص سنو ہوں حضرت عیسیٰ کی خصوصیات دس رہے ہیں, جبکہ وہ مرد غیر شادی شدہ اور شرابی ہو اور فاحشہ عورت کا محبوب ہو, اور وہ ہر وقت اس کے آگے گھومتی پھرتی ہو اور اپنی جان و مال سے اس کی خدمت کرتی ہو. پھر داؤد علیہ السلام پہ چلے جاتے ہیں. داؤد السلام کی مثال سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تو اڑتی ہوئی ایک نگاہ اجنبی عورت پر پڑ جانے سے کیسا خطرناک انجام ہوا داؤد کا, حالانکہ اس کے پاس کافی بیویاں تھیں, ان کی عمر بھی اس وقت 50 سال سے زیادہ ہو چکی تھی. اس طرح سلیمان علیہ السلام کا حال بھی پیش نظر رکھیے. ان عورتوں نے کس حد تک مغلوب کر دیا کہ نبی اور عہد جوانی میں نیک اور صالح ہونے کے باوجود بڑھاپے میں ان عورتوں نے ان کو مرتد اور بدھ پرست تک بنا ڈالا. سن دے جو ان کیڑے نبی نے تسی کہندے حضرت عیسیٰ دی شان, اور جب ان کو بھائی یہ جس کا آپ کلام سنا رہے کون ہے یہ شخص؟ یہ ہے جی جناب ملہم من اللہ مامور من اللہ مولانا رحمت اللہ کرانوی. یہ ان کے مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب دیوبندی اہل حدیث مسلک کے عالم اور مولف تھے, اور یہ عیسائیت اور یہودیت کا بائبل کا گہرا مطالعہ تھا, اور ان کے ساتھ یہی مناظرے کیا کرتے تھے. تو ہم تو دیوبندیوں کو کافر سمجھتے ہیں. میں تو مسلمان سے بات کر رہا ہوں, آپ کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کو؟ میں ڈیفینڈ کہاں کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں ہم تو مسیح موعود کا کلام پڑھ رہے ہیں. مجھے بات پوری کر لینے دینا. میں اب یہ ان کو بتا رہا ہوں, یہ اگر جماعت احمدیہ خلافت یا لاہور سے ان کا تعلق ہوتا ہے تو یہ روز پڑھ کے سناتے ہیں, جس طرح یہ روز سناتے ہیں شہبت ہو گئی, شہبت نے جنبش نہیں لی, شہبت نے جنبش نہیں لی, شہبت نے روز ایک کہانی سناتے ہیں. اور یہ آگے چل کے ان کو کہتے ہیں کہ جی ان کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائی امنون اور سمر اور اپنے بزرگوں ردبیل اور یداوا کے حالات سے پہ در پہ تجربات حاصل ہوئے, کہ یعنی یہ سارے اس قسم کے. پھر یہ کہتے ہیں آگے چل کے, اس کا انکم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ جو اب حضرت صاحب والا ہے, اس طرح یہاں تک کہا انہوں نے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے نا وہ لواطت بھی کرتے تھے. یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بھی رغبت رکھتے تھے. اس طرح بیریش لڑکوں کا اخلاق بڑا ہی خطرناک ہے, بلکہ عورتوں کے اخلاق سے بھی زیادہ خطرناک اور کبھی ہے, جس کی شہادت تجربہ کار لوگوں نے دی ہے. کہ آپ غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب شراب نوشی میں حد اعتدال اور سے اس قدر آگے نکلے ہوئے تھے, خود ان کے معاصرین کی نسبت یہ الفاظ کہتے ہیں کہ بہت کھانے والا اور بے انتہا شرابی ہے. آپ کنوارے نیز جوان بھی تھے. پھر جب مریم, وہ جو عورت تھی فاحشہ عورت, مریم آپ کے قدموں کو اپنے آنسوؤں سے دھوتی ہے, جس وقت آپ کے پاس آتی ہے برابر آپ کو بوسے دیتی ہے. یہ باتیں حضرت صاحب نے نہیں لکھی, برابر آپ کو بوسے دیتی ہے اور چومتی رہتی ہے. آپ کے پاؤں اپنے سر کے بالوں سے صاف کرتی ہے, بالکل اس حالت میں کہ وہ اس زمانہ کی مشہور فاحشہ اور رنڈی تھی. ایسی حالت میں حضرت اسلام نے اپنے بزرگوں یہوہ داؤد اور سلیمان کے واقعات کو کیسے فراموش کر دیا.
यानी वो सारे भी इसी किस्म के लोग थे। और सुलेमान की मज़कूरा नसीहतें कैसे भूल गए, किस तरह उन्होंने ये बात ना समझी कि औरत की कीमत तो महज एक रोटी है और इसको हाथ लगाने के बाद बचना मुमकिन नहीं है। जिस तरह बगल में आग होते हुए कपड़ों का जलना गैर मुमकिन है, या आग के अंगारों पर चलने के बावजूद पाँव का जलना नामुमकिन है। यानी ये आपको बता रहे हैं कि औरत अगर आपके पहलू में है तो अगर आग आपके बगल में हो तो आपके कपड़े बचेंगे। फिर आपने इस औरत को इसकी हरकत की वजह इजाजत कैसे दे दी? यहाँ तक कि फरीसी को कोई जिसने इतराज किया था, इतराज की नौबत आई और क्यों कर माना जा सकता है कि ये सब काम, अलामा साहब सुने, कि ये सब काम मुक्तज़ाए शहवत के मुताबिक नहीं हो रहे थे। मुक्तज़ाए शहवत, मिर्जा साहब पे इल्जाम है, ये किताब बराहीन अहमदिया से बहुत पहले लिखी गई है कि ये सब काम मुक्तज़ाए शहवत के मुताबिक नहीं हो रहे थे, और इन हरकत के बावजूद आपने इस गुनाह को किस तरह बख्श दिया। यानी सवाल कर रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इसके बाद आपने उस गुनाह को बख्श दिया हो। क्या इस किस्म की अफाल और हरकत खुदा से पाक और आदल की शान के लायक हो सकते हैं? ये वो इन्होंने सारा इसमें बयान किया। बहुत अलग, समझ गए ना? और वो कहते हैं कि मरियम नामी औरत जो है वो जानिया और हरामकार औरत थी। ये भी मालूम है कि मशरकी मुल्कों में इस किस्म के बातें उन्होंने आगे इसका बयान किया। लेकिन ये मैं अहमद नज़ीर साहब को बताना चाहता था कि हजरत साहब ने यसू का लफ्ज इस्तेमाल किया है। हजरत साहब ने इधर ईसा अलैहिस्सलाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आपके मौलाना साहब ने सीधा सीधा नूह अलैहिस्सलाम, फलाना, दाऊद, सब का लेके सबको रगड़ के रख दिया है और सब के बारे में ये बातें की हैं। और ये शहवत की बात मिर्जा साहब ने पहली दफा नहीं की, जो आप दुनिया को बताते फिरते हैं कि जी शहवत की बात जो है वो मिर्जा साहब ने की है। मिर्जा साहब ने अभी आपने कहा हमारा कोई आलम ऐसी बात करे तो हम उसको ये करेंगे वो करेंगे। आप मिर्जा साहब की बराहीन अहमदिया से पहले ये लिख चुके हैं अलामा साहब। अभी तो मैंने कुछ बताया, अभी इसमें बड़ा कुछ पड़ा हुआ है। वो लड़कों का किस्सा, बल्कि यहाँ तक लिखा है कि जी वो लड़का जो है वो तकिया नीचे रख के इस पोजीशन में आ जाता था जिस तरह की औरत अपने लुभाने के लिए मर्द को अपने इस तरह करती है। यहाँ तक लिखा हुआ है इस किताब में। मिर्जा साहब ने तो कुछ लिखा ही नहीं। अच्छा, मुकम्मल होगी बात के अभी करनी है आपने? जी करें। अब आपने यही करना है जी, हम इसको उठा के वहां मारते हैं, हम इसको उठा के दाएं मारते हैं। हमारे लिए ये हुज्जत नहीं है। हमारे लिए मिर्जा साहब की हुज्जत है बात, वो हमने पकड़ के तो दुनिया भर को सुनानी है। जो मैंने कहना वो भी कह दे साथ। हाँ कह दे जो मैंने कहना है। ये बातें आप मुझे बताएं कि लिखने के काबिल हैं जिस शख्स ने लिखी हैं। और इसको कौन छाप कौन रहा है? मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी, मौलाना अकबर अली, वो इस सबको छाप रहे हैं। कह रहा हूँ कि जो मैंने कहना है ना इसके बदले में वो भी आप कह देना। नहीं, अब आप बात करें। अब आप बताएं कि जी मिर्जा साहब ने लिखा है शहवत, और तो किसी ने लिखा ही नहीं। वो कहते हैं मिर्जा साहब ने तो इतना लिखा है ना कि शहवत ने जन्म लिया या नहीं लिया। वो तो लिख रहे हैं कि जी काबू ही कैसे किया होगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। वो तो आगे तक पहुंच गया, बता रहा है कि सब कुछ हो गया है जो होना चाहिए था। जी आप करें बात। आप अगर कोई ये बात कहे कि जिसने भी इस तरह का कलाम लिखा है हम उस पर लानत डालते हैं, तो क्या आप मिर्जा साहब ये बर्दाश्त कर लेंगे? ये बात ये भी डाल देंगे, ये भी मैंने ये बात नहीं की है कि लानत डालें। अभी मैं डालने लगा। ये तो इन्होंने कहा नहीं, मैं उन्होंने लानत पाना जिन्होंने मिर्जा साहब ने मेरी बात सुने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब ने नहीं लिखी है, मिर्जा साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं, झूठ है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि मिर्जा साहब ने लिखी है, लेकिन मिर्जा साहब से पहले यही बात लिखी जा चुकी है, बराहीन अहमदिया से बहुत पहले लिखी जा चुकी है। और यानी मिर्जा साहब ने नकल मार के लिखी है आपके ख्याल? और ज्यादा नबियों के बारे में लिखी गई है, किसी को नहीं बख्शा गया। मिर्जा साहब ने भाई हम देखें, वो सीधा सीधा ईसा मेरी बात सुने। मिर्जा साहब तो उम्मत में सबसे आला तरीन रूहानी मुकाम रखने वाले इमाम आखिर ज़मान, मुल्हम मिनल्लाह, मामूर मिनल्लाह। उनका मुकाबला हमने इन मौलवियों से मुकाबले की बात नहीं है। मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। मैंने कब कहा कि मैं मुकाबला कर रहा हूँ? तो आप किस लिए फिर दिखा रहे हैं उनका? और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ हजरत साहब ने भी लिखा है, लेकिन जब मैंने दोनों तहरीरों का मुआवजना किया तो मुझे क्या लगा कि कौन सी तहरीर ज्यादा सख्त है? आपके ख्याल में कौन सी ज्यादा सख्त हुई है? भाई हमें जो दूसरों ने लिखा हमें उससे कोई है तो ये क्यों नहीं बताते कि हमारे बंदों ने भी ये लिखा हुआ है? तो वो तो कहते हैं जो भी ये लिखता है इल्जामी जवाब वो लानत डालते हैं। हमारे लिए लिखा है।
और ये अगर रोज कोई आके साहब उधर ने बैठ के अपने ईसाइयों को रिसाले बताते में हैं जो जो को बात आमिर नज़ीर तो कहते हैं मैं सब पे लाने डालता हूँ जिन्होंने ये कहा। अब ये बात खत्म करके चुप करेगा या कंटिन्यूअसली जब बोल ही एक जाएगा? बंदा सवाल पे सवाल उठा रहा है तो मैं क्या करूं? अगला आप बंदा म्यूट मुझे लगा पता लें, क्या जिस तरह मैंने म्यूट कि जिस तुम तरह क्यों इनके मैंने बंदे की बात कर रहे हो, तुम मिर्जा साहब की बात करो। और जिस तरह मैंने म्यूट लगा के सुना है ना, आप भी तो म्यूट ठीक है, लगा अब लें। आप जवाब दें, अब आप जवाब हाँ। दें, इनको कहेंगे ये बीच में ना कहेंगे जी वो हुकूमत अल्लाह है, हमने उनकी बात सुननी है, हमें दूसरे से क्या वो दूसरा क्या लिखे क्या ना लिखे। अगर हमें नहीं है दूसरे से कोई गरज कि वो क्या लिख रहा है, इसी तरह इनको भी मिर्जा साहब से गरज नहीं होनी चाहिए कि वो क्या लिख रहे हैं, ये भी उसको इग्नोर करें। ठीक, बात ये है कि देखें, आप अंदाज़ा करें कि किस जज्बात से और किस गुस्से से मुश्तिल होकर आवाज़ में कपकपाहट और गैज़ व गज़ब जो आपने सुना है, ये साबित करता है कि इनके अंदर भी कोई चीज़ ऐसी है ज़रूर जो इनको झंझोड़ के कह रही है कि ये मिर्ज़ा साहब ने तौहीन की है, ये मिर्ज़ा साहब ने तौहीन अमेज़ इबारतें लिखी हैं। इनका जवाब दो, इनको कंपेयर करो मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी की बातों से, इनका बैलेंस करो, वरना कख नहीं रहना पल्ले। मिर्जा साहब भी असफल साफलीन में जाकर गिरेंगे। जिस तरह मौलवियों के बारे में हम अगर कह सकते हैं कि अगर किसी मौलवी ने, एक है इंजीली मसीह और इंजीली इक्तबासात, जो भी उसके अंदर शेख बटाली ने लिखा, मुझे पता है, मैं 17 नंबर जिल्द में मैंने खुद पढ़ी है उनकी तहरीरें, कि एक मसीह वो हैं जिनका कुरान में तज़किरा है, और एक वो अंबिया हैं पाक जिनका कुरान में तज़किरा है, एक वो हैं जिनका जिक्र बाइबल ने किया है, और बाइबल ने सारे नबियों के ज़ुम्मे ऐसी बातें लगाई हैं। मेरी आवाज़ मन्नू आ रही, पता नहीं किधर माइक चो सैनी साहब शायद ਤੁਹਾਡੇ माइक चो आ रही। उनकी नबियों की ऐसी बातें लिखी हैं जो नबियों के शायान शान ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। और उलमा ने, मैंने कब कहा कि इल्ज़ामी जवाबात नहीं दिए, लेकिन अगर कोई आलम दीन उस तहरीर से बढ़कर जो तहरीर उसके अंदर मौजूद है और आप पेश करते हैं इल्ज़ामी तौर पर कि भाई आपकी अपनी किताबों में देखें कि आपने सच्चे नबियों का ये किरदार पेश किया हुआ है, उस तहरीर से बढ़कर एक भी लफ्ज़ अपने पास से तौहीन अमेज़ लिखता है किसी नबी के खिलाफ, मैं उस पर डालता हूं लानत। आप भी डालते हैं, है हिम्मत कि कहें कि जिसने एक भी लफ्ज़ अपने पास से ऐड करके, एक मिनट हौसला रखो, आप कौन क्यों चिका उनकी हो गया, उनकी की हो गया उनकी हो गया आमिर नज़ीर को अपनी बात करने देना पूरी, नज़ीर ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, फिर आप कर लें बाद में। ਹੁਣ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ओ भाई ना सुन तो लो, कुछ तो नहीं होने लगा। हेलो हेलो गाला कटूंगे, हेलो गाला कटूंगे, गाला कटो भाई जब आपकी बारी है कि आप बोल लें, आमिर नज़ीर को बोलने दे, तू चुप कर दे, तू चुप कर, जिसकी बारी उसको बोलने दो, फिर तुम अपना पंगा ले लेना। तेरी गैरत मर गई है ते क्वेश्चन ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ। ਜੀ ਜੀ हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀੜਾ ਸਖਤ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਦੇ ਆ? और तू क्यों बोल रहे हैं, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲੈ। ਮੌਕਾ ਦੇ ਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ जी आमिर नज़ीर साहब बोल रहे हैं। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੱਸੋ, ਖੋਲੋ ਮਾਈਕ, ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਅਭੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੈਰ ਮਹਜ਼ਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇਹੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸੁन्नत ਹੈ,
ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਓ, ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਅਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। लेकिन ये ना करया करो, ना करया करो। इसे वजह तो बहुत सारे दोस्त ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਇhtਜਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਫਿਕਰੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਜ਼ਬ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਨੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਦਾ ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਅਮਦਨ ਤੋਹੀਨ ਅਮੇਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਲੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਨੂਹ अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਤੋਹੀਨ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਲੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਖਲੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਯਸੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਸੂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜੀਸਸ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਯਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਰੇਵੇਂ ਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਸੂ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਈਸਾ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਮਸੀਹ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਜ਼ੋ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਂਬੜ ਪੇ ਮਚਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਗਰਗੂ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਤ ਗੈਰ ਹੋ ਗਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਗੱਲ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ। ਉਹ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ, ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮਾਈਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਮਿਊਟ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਐਸੀ ਬੇਬਸੀ कि उन्हें आख्या नहीं इस बेबसी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। ऐसी बेबसी का शिकार होए पे ने, आवाज़ां कपकपा रही ने, लरज रही ने। वो दूजा है तो ओदी इंज पे लगदा सी पता नहीं, अल्लाह माफ करे, जिवें पता नहीं
ਕਿ ਅਟੈਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਪਕਪਾਉਂਦੀ? ਉਹ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਲਿਆ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੋਲਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਯਾਰ शेख साहब ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਹੋਣਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸ਼ਹਿਬਤ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਗੜੇ ਹੋ, ਤਗੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਣ ਲੱਗਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਾਇਓ। ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਆਖ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਰਸੂਲ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਨੇ